So just one general information about the thorax. Then we are moving ahead one by one for each structure. तो बेटा इस थोरेक्स वाले पार्ट में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? वी आर स्टडिंग फ्रॉम बिलो टू द अवर नेक पार्ट अप टू द अवर थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम। यहाँ पर हम देखेंगे एक पार्टीशन होता है बिटवीन द नेक एंड द थोरेक्स, दैट इज आल्सो द डायफ्राम, नोन एज सिब्सन्स फेशिया। तो बेटा सिब्सन्स फेशिया से लेकर के थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम तक जो पार्ट होता है इसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। और इसकी बाउंड्रीज कौन बना रहा है? वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस इमेज। ओके, so just see here, the thoracic cavity is formed by, yes, यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं? You can see here, anteriorly there is a sternum, and what are the different parts of the sternum? You can easily see. थोड़ी सी चीजें बेटा हम ऑस्टियो की भी कवर कर रहे हैं। Yes, you can see there is the manubrium and there is the body, और नीचे में एक छोटा सा प्रोसेस होता है दैट इज योर जिफार्ड प्रोसेस। ओके, now you are very well aware that junction between manubrium and the body is known as external angle of the Lewis। और आपको पता है कि ये सेकेंड रिब वाले पार्ट में जुड़ता है। एट दिस पार्ट देयर इज आर्टिकुलेशन ऑफ द सेकेंड रिब। यस, रिब्स के दो पार्ट होते हैं, दो टाइप्स होते हैं बेटा, एक ट्रू रिब्स और दूसरा फॉल्स रिब। ट्रू रिब्स जो वर्टिब्रा से निकलता है और स्टर्नम में आर्टिकुलेट करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। जबकि कुछ रिब्स होते हैं, यू कैन सी सेवंथ एट्थ नाइन्थ, यस यू कैन सी कि ये जो सेवंथ रिब है वो भी वर्टिब्रो स्टर्नल है, लेकिन एट्थ नाइन्थ टेंथ दे आर ज्वाइनिंग टू द सेवंथ रिब। ओके, तो ये जो एट्थ नाइन्थ टेंथ है इनको हम वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं। यू कैन ऑब्जर्व हियर अनदर टाइप ऑफ द रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। ओके, लेकिन लास्ट में जो आपका 11th और 12th रिब है दे आर जस्ट फ्लोटिंग रिब्स। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट फैक्ट्स विच यू कैन रिमेंबर। एक और आगे की चीज हम लर्न करते हैं, समटाइम्स देर इज अ प्रेजेंस ऑफ द 13th पेयर रिब ऑल्सो, नॉट ऑलवेज। देर इज द 13th पेयर रिब, दिस इज नोन एज गोरिल्ला रिब। दिस इज नोन एज गोरिल्ला रिब। ओके, तो अगर आप थोरेसिक कैविटी को देखते हैं तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, एंटीरियरली इट इज बाउंडेड बाय द आवर स्टर्नम, ऑन ईच साइड इट इज बाउंडेड बाय द रिब्स, एंड ऑन द बैक साइड it is bounded by the thoracic vertebra. Yes, these all are the thoracic vertebra. Superiorly it is bounded by the our substance fascia, and inferiorly it is bounded by the our thoraco-abdominal diaphragm. Okay, hope you all are getting the point. Okay, so now come to the our next part. Yes, so after this all the different parts, now we are going to look for the our next. This is one just simple depiction of the our rib. So what are the different features of the rib? Yes, it is having the your anterior end and posterior end. So here you can look, this is the posterior end, two borders are there. What are the two borders? Superior border and there is the inferior border. Two borders are there, two surfaces are there. Yes, outer surface and inner surface. Forget everything what you have to remember for any rib. Yes, on the inner surface along the lower border there is the presence of the costal groove. Can you see this is the costal groove? Within this costal groove
there is a presence of, yes, vein, artery and the nerve. This is important relation. Okay, what are these different vein, artery and the nerves? Yes, you can remember with the trick VAN. This is vein, here is artery and here is the nerve. Okay, so these are intercostal vein, intercostal artery and intercostal nerves. So you have to remember these points. Okay, within each costal groove, intercostal vein, intercostal artery and the intercostal nerves are located. Getting the point? Okay, so now try to understand for the furthermore part. Yes, one important rib for all of you. So remember, this is osteology part which is asked in your viva exam. So this is the diagrammatic presentation of the first rib. ओके, तो बेटा ये फर्स्ट ट्रिप में हमको एक चीज जरूर लर्न करनी है, दैट इज आवर स्क्लेनियस एंटीरियर मसल. ओके, सो यू ऑल मस्ट नो अबाउट द स्क्लेनियस एंटीरियर मसल. सो कैन यू फाइंड आउट वेयर इज द स्क्लेनियस एंटीरियर मसल? See here, this is the our very small rib, first rib. Okay, it is having the two borders. Can you observe what are the two borders? Yes, it is having the outer border and it is having the inner border. In the inner border there is a one bony elevation is located which is known as the scalenus anterior tubercle. This is the scalenus tubercle. Within this scalenus tubercle there is the insertion of scalenus anterior muscle. This is important. Now what other point is asked during the our viva exam? So try to learn. इसके आगे में बेटा जो आपको दिख रहा है, कैन यू सी हियर, देयर इज द ग्रूव. दिस ग्रूव इज नोन एज ग्रूव फॉर द सबक्लेवियन वेन. यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर पास होगा? सबक्लेवियन वेन. इसके पीछे जो पार्ट है, देयर इज द ग्रूव फॉर द अवर सबक्लेवियन आर्टरी. सो हियर इज द ग्रूव फॉर द सबक्लेवियन आर्टरी. और इसके पीछे जो पार्ट है, यस, देयर इज द pathway, there is a passage for the nerve. Can you observe this one? What is the nerve? What is the name of the nerve? This is nothing, this is the brachial plexus. तो यहाँ पर brachial plexus के जो ट्रंक होते हैं, अपर मिडिल लोअर ट्रंक, वो यहीं से पास होते हैं. विच ट्रंक is lying in contact with this first rib? Answer is the lower trunk. So you can remember that, yes, anteriorly there is a pathway for the our vein. Which vein? Subclavian vein. फिर से रिवाइज कर रहे हैं, इसके पीछे क्या जा रहा है? Yes, you can remember the structure passing from the back side, that is the our subclavian artery. और इसके पीछे जो स्ट्रक्चर जा रहा है, that is our nerve. So again you can remember this all the important relation with the same trick, VAN. बस आपको याद क्या रखना है? द स्क्लेनियस एंटीरियर मसल और द अवर स्क्लेनियस ट्यूबरकल इज इन बिटवीन द वेन एंड आर्टरी. तो ये जो वेन आर्टरी नर्व वाला पार्ट है, ये एक तरीके से यूनिवर्सल है. ओके, सो नाउ कम टू द आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आवर नेक्स्ट पार्ट. यस, सी हियर, this is the diagrammatic presentation of thoracic vertebra. So look at this diagrammatic presentation of the thoracic vertebra. Yes, so this is the diagrammatic presentation, one image based presentation of the thoracic vertebra. Okay, how will you identify the thoracic vertebra? See here, any vertebra is having the particular parts. अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कौन कौन से पार्ट होते हैं? Yes, look here, this is the body and here is a transverse process, and then here is the our lamina, and then there is a spine. This is our vertebral canal. Okay,
So what are the different parts? You can see here, this part is our body. On the each side there is transverse process. Getting the point? Body, then transverse process, and on the back side this long structure is our spine. So this is our spine. Okay, now try to understand, बॉडी और ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में जो पार्ट है इसे हम कहते हैं पेडिकल, एंड ऑन द बैक साइड द पार्ट इज नोन एज लेमाइना. So what is the characteristic feature of the thoracic vertebra? Can you see this spine? तो thoracic vertebra में बेटा बहुत लंबा स्पाइन है, तो लॉन्ग स्पाइन इज प्रेजेंट. इसकी मदद से आप पहचानते हैं कि दिया गया वर्टिब्रा जो है वो आपका thoracic vertebra है. And other structures which are helping, yes, you can observe here the other structure. There is the large upper demifacet for the articulation of the rib, as well as there is the presence of our small lower demifacet. So there is the facets are present on each side of the vertebra. Okay, so these are the points. Getting the point? Okay, so now after this thoracic vertebra part, we are going to look for the our intercostal space. You can observe in this space. So just look at the diagram. Yes, there are total 12 pair ribs. तो बेटा अगर मान लो 12 पेयर हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको 4 उंगलियां दिख रही हैं, सो इन बिटवीन द 4 फिंगर्स हाउ मेनी स्पेसेस आर देयर? 1 2 3. इन द सेम वे देयर आर टोटल 12 पेयर्स ribs. So how many spaces are there? 11 spaces are there. Space between the two rib known as the intercostal space. Simple language, आप ये डायग्राम देख सकते हैं. और ये जो इंटरकॉस्टल स्पेस है, इनके बीच में अगर आप इसको इनलार्ज करेंगे तो आप देख रहे हैं देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द मसल्स VAN, दिस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. तो हमारे थोरिक्स वाले पार्ट में बेटा सबसे पहला टॉपिक जो आता है दैट इज आवर इंटरकॉस्टल स्पेस. So here we are going to learn our first important topic for our first year MBBS, as well as also ask in your NEET next exam, that is intercostal space. Getting the point? So we are going to talk about this intercostal space part. Yes. First of all, what is the definition? Yes. Space between two ribs known as intercostal space. If anybody is asking about the total number, then remember 11 pairs are present. One more thing you have to remember, space below 12th rib known as subcostal space. Okay, so these are the different points for your notes, you can remember. Okay, after this, now look at this diagram for the content. अगर हम यहाँ डाइसेक्शन करें और इस पर्टिकुलर पार्ट को इनलार्ज करें, कैन यू सी दिस इनलार्ज व्यू? अगर हम इसको इनलार्ज करें तो आपको बेटा यहाँ पर अपर रिब दिख रहा है और इसके नीचे लोअर रिब दिख रहा है. ओके, दिस इज द इंटरकॉस्टल स्पेस एंड यू आर डाइसेक्टिंग आउट एंड देन यू आर लुकिंग देयर इज द यस अपर रिब, लुक एट द डिमार्केशन, और उसके नीचे बेटा जो LR दिख रहा है दैट इज द लोअर रिब. तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे
तो यहाँ पर कुछ मसल्स आपको दिख रहे हैं। सबसे बाहर में एक मसल है जो डाउनवर्ड फॉरवर्ड मीडियली रन कर रही है। यस, कैन यू ऑब्जर्व हियर द मसल विच इज रनिंग डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड मीडियली। सो दिस मसल इज आउटसाइड, इसलिए इसका क्या नाम होगा, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर है, दो रिब के बीच में, इसलिए इसे बोलेंगे इंटरकॉस्टल मसल। और जब आप इसके अंदर देख रहे हैं तो एक और मसल है जो इससे 90 डिग्री बनाते हुए रन कर रही है, जस्ट लाइक द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन। ओके, ये 90 डिग्री बनाते हुए रन कर रही है। दिस इज नोन एज, यस, इंटरनल, कैन यू सी दिस ब्लैक कलर मार्किंग स्ट्रक्चर, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। और इसी के पैरेलल में एक और मसल आपको दिख रही है, ये सबसे अंदर है, दैट्स व्हाई इट इज इनर मोस्ट इंटरकॉस्टलिस। ओके, you can observe in the diagram that these particular muscles are innermost intercostalis। और बेटा यहाँ पर जो आप देख रहे हो, these are the our intercostal vein, artery and the nerves। so you can observe this all the thing structure। yes, आपको सबसे ऊपर में यहाँ पर ये जो हम रेड जो मार्कर कर रहे हैं, इसके ऊपर में वेन दिख रहा है, फिर इसके नीचे बेटा आर्टरी और सबसे नीचे में नर्व दिख रहा है। सो यस, वी आर गोइंग टू लुक फॉर द इंटरकॉस्टल स्पेस contents of intercostal space, we are going to look for it। okay, तो इसमें आपको बताना है मसल्स, देन वेन, आर्टरी एंड द नर्व। मसल्स का नाम हम क्या बोलेंगे, इंटरकॉस्टल मसल्स। वेन को हम बोलेंगे इंटरकॉस्टल वेन, आर्टरी को हम कहेंगे इंटरकॉस्टल आर्टरी, और नर्व को हम कहेंगे इंटरकॉस्टल नर्व्स। एज सच एग्जाम में इंटरकॉस्टल स्पेस नहीं आता, हाँ फर्स्ट ईयर के बच्चों को टिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व, इसके ऊपर ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम, ये क्वेश्चन आता है। ओके, so we are going to look for that। okay, so now see what are the different intercostal muscles are present। so look here, what are the different intercostal muscles are present। इसमें से बेटा आप याद रखना, this VAN located in intercostal groove और सीक्वेंस क्या है, फ्रॉम above to below। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीक्वेंस है, आपको ये पता रखना है। यस, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर जो इंटरकॉस्टल मसल हैं वो कौन कौन से होते हैं। so these intercostal muscles, they are outside lying structure, they are known as external intercostal मसल। याद आया बेटा, जैसे कि एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल था, ठीक वैसा ही एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इसके ठीक अंदर जो मसल रहेगा दैट इज जस्ट लाइक द इंटरनल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक के जैसा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। इसको हम शॉर्ट में EIM लिख रहे हैं, इसको हम इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल IIM लिख रहे हैं। एंड देयर इज वन मोर मसल ग्रुप इज लोकेटेड, that muscle is running transversely, that muscle is running transversely, that's why that another muscle is known as transversus thoracis, just like the transversus abdominis muscle। अगली मसल कौन सी है, ट्रांसवर्सस थोरेसिस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ट्रांसवर्सस थोरेसिस के 3 ग्रुप होते हैं। एक जो स्टर्नम और रिब्स के बीच में होता है, तो इस मसल को हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज sternocostaliस। so what is the name of that muscle, yes, sternocostaliस। अगली मसल जो होती है बेटा वो पीछे की तरफ होती है और रिब्स के नीचे वाले पार्ट में अटैच होती है, दैट्स व्हाई दैट मसल ग्रुप इज नोन एज सब कॉस्टेलिस। but these muscle are not important, so you can leave this muscle, but the major part of these muscles are occupied by, सबसे मेन पार्ट कौन सा मसल है जो ऑक्यूपाई करता है, दैट इज नोन एज इनर मोस्ट इंटरकॉस्टली, सबसे अंदर होता है, दैट्स व्हाई इनर मोस्ट।
और इंटरकॉस्टल इसमें है, दैट्स अ इंटर costalis. Getting the point? Now see here, this innermost intercostalis is also known as intercostal intimae. This is also known as intercostal intimae. ओके, तो ये तीन मसल्स के आपको लेयर ऑब्जर्व हो रहे हैं, इनके डायरेक्शन लगभग उन्हीं के जैसे ही होते हैं। ट्रांसवर्स थोड़ा ट्रांसवर्सली रन कर रहा है। ओके, एक्सटर्नल ऑब्लिक इट इज रनिंग डाउनवर्ड फॉरवर्ड मीडियली जस्ट लाइक द एक्सटर्नल ऑब्लिक। ओके, लेकिन यहाँ पर आपका जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल दैट इज रनिंग अपवर्ड बैकवर्ड एंड लैटरली लाइक द हैंड्स इन द शोल्डर। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप इंटरकॉस्टल मसल के बारे में लर्न कर सकते हैं। यस, now I am going to show you the few more diagrams. Yes, see here. Yes, just one information you can collect from here about the attachment for your osteology part. Okay, but it is not important for the first year theory exam. आपको बेटा क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, दैट इज योर typical intercostal nerve structure. So we will observe about that, just adding these images for your notes purpose. Yes, here is the diagrammatic presentation of this all the muscles. Okay, here the diagram is depicted. You can go through the theory part, but ये बेटा बहुत ज़्यादा important नहीं है. Yes, see here, extra intercostal muscle ये downward forward medially run कर रहा है. Anteriorly it is replaced by the membrane which is known as external intercostal membrane. और अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री बनाते हुए इसी के साथ दूसरी मसल रन कर रही है जो इसके अंदर होती है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बेटा ये है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इट इज पोस्टीरियरली absent एंड वन मेम्ब्रेन इज रिप्लेसिंग इट, दैट इज इंटरनल intercostal membrane. Getting the point? Okay, so you can look this all the diagrammatic presentation and you can observe here is the upper rib and here is the lower rib. Extra intercostal muscle is running downward, forward, and medially. Intra intercostal muscle is making 90 degree to this muscle. Okay? और यहाँ पर सेकेंड और थर्ड लेयर के बीच में आपको क्या मिल रहा है, यू कैन सी देर इज द वेन आर्टरी इन द नर्व। लेकिन बेटा इस डायग्राम में इसने गलत शो कर दिया, वेन को आपको बनाना है ऊपर, फिर उसके बाद आपको ड्रॉ करना है आर्टरी, और आर्टरी के बाद आपको ड्रॉ करना है नर्व। ओके, सो यू कैन मेक करेक्शन हियर। नाउ see here, this is the same diagrammatic presentation. You can observe here the sequence is correctly given. What is the correct sequence? Yes, vein, then artery, and then nerves. This intercostal nerve is important. What is the applied part? Try to understand through this diagram. See here, एक प्रोसेस हम पढ़ेंगे that is known as thoracocentesis. What is the name of the process? The name of the process is thoracocentesis. इसमें हम क्या करते हैं, हम निडल लेते हैं और हमारे लंग में प्लूरा में जो पानी या ब्लड एक्यूमुलेट रहता है उसे हम रिमूव करते हैं। तो हमें निडल को इंसर्ट करना होता है। कहाँ हम निडल को इंसर्ट करते हैं? यस, इन द मिड एक्सिलरी लाइन इन एट्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। लेकिन किस पार्ट में हम निडल को इंसर्ट करेंगे? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मान लो आपने निडल को इस पार्ट से इंसर्ट किया, कहाँ से? लोअर पार्ट ऑफ द इंटरकॉस्टल स्पेस, यहां से अगर आपने इंसर्ट किया
तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, we will do damage to this intercostal vessels, so it is not a good technique. Yes, it is not done. Okay, यहाँ पर बेटा कुछ छोटे छोटे वेसल्स होते हैं लेकिन ये डैमेज हो जाएंगे, चलेंगे, these are very small. So always insert the needle from the lower part. Yes, always insert the needle from the lower part. So this is the way what you have to do during the thoracocentesis. कहाँ से आपको निडल डालनी है? Yes, you have to insert the needle at the lower part of our costal groove, intercostal space, from lower part of intercostal space, or you can also say along, you can observe the diagram, yes, along upper border of rib. Best space you have to remember for your MCQs, 8th intercostal space, where in mid axillary line. तो बेटा एक्सिला की जो मिडिल में जो लाइन होती है, हम अपर लिम्ब वाले पार्ट में देखे थे, वहां पर हम निडल इंसर्ट करेंगे. बेस्ट पार्ट क्या है? 8th इंटरकॉस्टल स्पेस. कुछ बुक में बेटा 9th भी मिलेगा, बट रिमेंबर 8th इज बेटर आंसर देन 9th. बोथ आर करेक्ट बट 8th इज बेटर आंसर देन 9th. ओके. एक और नई चीज आपके लिए, कुछ ऐसे ऑपरेटिव प्रोसीजर होते हैं जिसमें हम इंटरकॉस्टल नर्व को ब्लॉक करना होता है. यस, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस, हेलो एवरीवन. हाँ बेटा, वीडियो लैग कर रहा है करके आप लोगों ने इन्फॉर्म किया, थैंक यू उसके लिए. हम उसके लिए टेक्निकल पर्सन को कांटेक्ट कर रहे हैं, उससे ये पूछ रहे हैं कि कैसा होता है. लेट्स सी, ये प्रॉब्लम भी इन फ्यूचर सॉल्व हो जाए, हो सकता है कुछ टाइम लगे. और एक अच्छी खबर ये है कि iOS के लिए वर्जन हमारा आज लॉन्च हो जाएगा, है ना. तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमको हो सकता है थोड़ी वेट करनी पड़े, बट वी हैव टू कीप मूव ऑन. ओके. And one good thing that videos are available for 24 hours for your रिवीजन ऑल्सो. ओके. तो अगर कोई लैक्यूना वहाँ पर रहता है, नई नई टेक्नोलॉजी अभी हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस लैक्यूना, कुछ हमको ड्रॉबैक है तो कुछ हमको बेनिफिट्स भी हैं. आई थिंक बेनिफिट्स हमको ज़्यादा मिल रहे हैं, और बाकी जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसे हम धीरे धीरे सॉल्व करते रहेंगे. होप साउंड क्वालिटी इज ओके. साउंड इज ओके. कैन यू इन्फॉर्म मी? Yes, yes, kindly inform again about the audio. Audio is crystal clear. Okay, mic testing 1 2 3. No, PC version is not available. Nobody, no app is providing the PC. It is taking too much cost already. There is the many features are there.
वी आर इन्वेस्टिंग टू मच फॉर द फैसिलिटी ऑफ यू ऑल द स्टूडेंट्स, ओके, लेकिन ये चीज़ नहीं हो रहा है, ओके। बट ये चीज़ मैंने ऐप वाले को भी बोली कि डाटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, मेरा भी डाटा बहुत कंज्यूम हो रहा है, आपका जितना डाटा कंज्यूम हो रहा है, आपका तो एक आदमी का डाटा कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म में 100 बच्चे रहते हैं, तो 100 बच्चों का डाटा मेरे से कंज्यूम होता है। लेकिन उसने मुझको एक चीज़ कही, बहुत अच्छी बात कही, उसने कही कि हम सभी लोग एक दिन में 1 जीबी डाटा जो रहती है सिर्फ यूट्यूब रन करने में स्पेंड कर देते हैं। तो बेटा पढ़ने लिखने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द मोर बेटर प्लेटफॉर्म देन एनी अदर मीडिया। यहाँ पर प्रोटेक्शन है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, ओके। सो यस, डाटा वाली बात उसको तो अब दिमाग से हमको निकाल ही देना चाहिए। मेरा डाटा, आप लोग का अगर एक आदमी का डाटा जा रहा है तो मेरा तो 100 आदमियों का डाटा जा रहा है, तो यस आई थिंक इट इज़ नॉट अ मैटर। और हम दिन भर में 1 जीबी डाटा तो ऐसे ही पिक्चर मूवी ये सब देख करके स्पेंड करते हैं, तो हम अच्छे काम के लिए उसको स्पेंड करें, वो बेटर चीज़ है, ओके। हाँ, यस, वीडियो लैग कर रही तो उसका हम कुछ इलाज खोजने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा हम पेशेंस रखेंगे, वीडियो को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, और हम आपके लिए बेनिफिट ये दे रहे हैं कि 24 घंटे तक आप उसको रिवाइज कर सकते हो, तो बेटा उसमें आपको ये सभी चीज़ें कंपनसेट हो जाती है, ओके। इवन देन वी विल ट्राई टू इम्प्रूव दिस पार्ट, ओके। और अच्छी बात यह iOS वर्जन आज ही हमारा लॉन्च हो जाएगा, यू ऑल कैन सी इन योर iOS वर्जन, ओके। सो थैंक यू फॉर दैट ऑल द थिंग्स। आगे बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। कैन यू सी दिस process when we are pricking the intercostal nerve, that is known as our intercostal nerve block. This procedure is known as intercostal nerve block. Getting the point? Okay. तो बेटा थोरेकोसेंटेसिस की तरह एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम एनेस्थेटाइज करते हैं किसको, इंटरकॉस्टल नर्व को। दैट प्रोसीजर इज नोन एज इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक। ये कहाँ से किया जाता है? यस, इट इज डन along lower border of any rib. Getting the point? Okay. So now come to the our next part. After this all, now we are going to talk about the our intercostal nerve. So just look here. ये बेटा ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम करके आपके एग्जाम में आता है. So hope you all are aware about this intercostal nerve diagram from your general anatomy part. Yes, this is the our diagrammatic presentation of the typical intercostal nerve. Yes. So now we are going to study about the intercostal nerve. Intercostal nerves. इसका ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम हमारे एग्जाम में आता है. दिस इज द अवर एनी पर्टिकुलर स्पाइनल नर्व डायग्राम. तो बेटा ये स्पाइनल कॉर्ड है और इससे क्या जुड़ा हुआ है? यू कैन सी द अवर डॉर्सल रूट एंड द वेंट्रल रूट. डॉर्सल रूट में जो आपको डायलेटेशन दिख रहा है दैट इज नोन एज डॉर्सल रूट गैंग्लियन. और बेटा डॉर्सल और वेंट्रल रूट मिलकर के ट्रंक बना रहे हैं. एंड देयर इज द डॉर्सल प्राइमरी रेमाई एंड द वेंट्रल रेमाई. रिमेंबर दिस वेंट्रल रेमाई इज नोन एज आवर इंटरकॉस्टल नर्व. ये जो वेंट्रल रेमाई है यही हमारा बनाता है ब्रेकियल प्लेक्सस. गेटिंग द पॉइंट? सो नाउ ऑब्जर्व हियर, दिस इज आवर वेंट्रल प्राइमरी रेमाई. ये कहाँ से आ रहा है? ये पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कैनाल की तरफ से ऐसा आगे आ रहा है. सो व्हेन इट इज रीचिंग ऑन द लेटरल साइड इट इज गिविंग द वन ब्रांच टू द थोरेक्स पार्ट. तो इसका नाम क्या होगा? दिस इज लैटरल क्यूटेनियस नर्व, क्योंकि ये स्किन को सप्लाई करेगा. दैट्स व्हाई लैटरल क्यूटेनियस नर्व. किसको सप्लाई करेगा? थोरेक्स को. दैट्स व्हाई लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थोरेक्स. फिर ये नर्व जब आगे आता है स्टर्नम के पास में तो ये क्या देता है? इट इज गिविंग द एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थोरेक्स. ओके. So you can see on the lateral side it is giving the branch lateral cutaneous branch, while on the anterior part it is giving the branch that is the anterior cutaneous branch. Okay. तो अब इसी को ही हमको लर्न करना है कि जब ये हमारे थोरेसिक कैविटी में यस इंटरकॉस्टल स्पेस में बनेगा तो ये डायग्राम कैसा ड्रॉ होगा. सो थ्रू दिस डायग्राम यू कैन लर्न अबाउट द इंटरकॉस्टल मसल्स एज वेल एज द इंटरकॉस्टल नर्व बोथ.
तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम में ये आता है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस डायग्राम. यस, intercostal nerve. Remember, the primary ventral rami of T1 to T11 known as intercostal nerve. पहला चीज जो आपको लर्न करना है. Okay, now see here, I am writing here T1, T2, then T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 एंड T12. तो इतने थोरेसिक नर्व होते हैं. ये जो थोरेसिक नर्व हैं, इसमें से T1 और T2 जो होते हैं, इनके ब्रांचेस, यस, डू यू रिमेंबर, इट पार्टिसिपेट, T1 आल्सो पार्टिसिपेट्स इन द ब्रेकियल प्लेक्सस. और बेटा इसके ब्रांच जो है वो, यस, मीडियल पार्ट ऑफ द फोर आर्म एंड द मीडियल पार्ट ऑफ द आर्म, इसको सप्लाई करते हैं. सो दीज आर सप्लाइंग अपर लिम्ब आल्सो, while the T3 to T6 thoracic nerve, they are only restricted to thorax part, while the 3T7 to T11, they are supplying the abdomen part. Yes, these are thoracic nerve supplying the abdomen. That's why these are known as thoraco abdominal nerve. Getting the point? Okay, because these are restricted to the thorax, that's why these are considered as typical intercostal nerve. बाकी जितने भी हैं वो सब क्या है, एटिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व. और आपको ये पता है कि T12 जो है ये बिलो द रिब है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सबकॉस्टल. दिस इज आल्सो नोन एज द सबकॉस्टल नर्व. गेटिंग द पॉइंट? ओके, okay, so now see here our next points, that one another important point, ये जो T10 और T2 नर्व होती है, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है. ये हमारे मीडियल पार्ट ऑफ द आर्म, इसको तो सप्लाई करती है, साथ ही साथ ये हमारे इंटरकॉस्टल स्पेस को भी सप्लाई करती है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज intercostal, because it is supplying the intercostal space as well as brachium. That's why brachial nerve. What you have to remember, this is known as ICBN. ICBN. So this is our intercostobrachial nerve. Getting the point? Okay. So these are the different intercostal nerve. So which are typical intercostal nerve? Answer is T3 to T6. बाकी सब जितने बचे सब एटिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व है. सो व्हाट इज द कोर्स, व्हाट इज द कोर्स फॉर दिस अवर टिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व? सो यू कैन ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम. बेटा मैं ये डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, फॉर प्रैक्टिस आई हैव एडेड हियर. ओके, बट राइट नाउ यू कैन सी द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. Yes, suppose this is our vertebra. बेटा आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में. एंड इट इज हैविंग द बॉडी, posteriorly there is the spine, and on the each side yes, suppose this is the our transverse process, thoracic vertebra diagram. Okay, now look here, अंदर में कौन बैठा हुआ, स्पाइनल कॉर्ड विद द डॉर्सल एंड वेंट्रल प्राइमरी रैमाई. ओके, अब यहां से अभी हमने पढ़ा कि डॉर्सल और मोटर रूट निकलते हैं, लेकिन पहले हम थोरेसिक कैविटी का प्रॉपर शेप दे देते हैं. yes, this diagram will require little practice.
सपोज हियर इज द मिड लाइन स्ट्रक्चर स्टर्नम। आपको पता है स्टर्नम जिधर है वो एंटीरियर साइड है और वर्टिब्रा जिधर है वो पोस्टीरियर साइड है। ओके, नाउ गिव द थोरेसिक कैविटी शेप। आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हो दैट थोरेसिक कैविटी इज इलिप्टिकल इन शेप। सपोज दिस इज अवर थोरेसिक कैविटी शेप। तो डायग्रामेटिक सिमेट्रिक के लिए बेटा एक डॉटेड लाइन से हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सपोज दिस इज अवर थोरेसिक कैविटी। तो एक एक करके हम मसल के लेयर बनाते हैं। सबसे बाहर में जो मसल होगी दैट इज अवर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। सो वी आर ड्राइंग द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। दिस इज द आउटर मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और हमको पता है दिस एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इज रिप्लेस्ड बाय मेम्ब्रेन एंटीरियरली। तो बेटा ये क्या है हमारा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन। ओके सर, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऐसा ही आप अपोजिट साइड में कर सकते हो। सो दिस इज योर external intercostal muscle, okay, and it is replaced by the membrane anteriorly. Okay, diagrammatic presentation, suppose this is the membrane. Okay, getting the point? Okay, तो ये कौन सा मसल आपने बनाया, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बनाया, और सामने की तरफ जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज इंडिकेटिंग द मेम्ब्रेन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इसके अंदर जो लेयर होगा दैट इज आवर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, जो कि पीछे में एब्सेंट होता है। सो दिस इज आवर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल which is near the sternum, it is attached near the sternum, but it is deficient posteriorly। तो बेटा पीछे में आप इसका क्या बनाओगे, मेम्ब्रेन बनाओगे, उल्टा है। सो दिस इज द इंटरनल इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन। अब सबसे अंदर में आपको एक और मसल का लेयर बनाना है दैट इज द इनर मोस्ट इंटरकॉस्टलिस। लेकिन बीच में बेटा स्पेस दे देना क्योंकि इंटरकॉस्टल नर्व यहीं पर बनाना है। दिस इनर मोस्ट इंटरकॉस्टलिस इज ऑक्यूपाइंग द मिडिल 2/4 पार्ट और हाफ पार्ट, यू कैन रिमेंबर। और स्पेस जरूर दोगे क्योंकि इंटरकॉस्टल नर्व इसी बीच में बनाना है बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड लेयर। सो आई एम डूइंग लेबलिंग फॉर योर प्रैक्टिस। हमने क्या क्या ड्रॉ किया, दिस इज अवर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इनसाइड टू इट देयर इज द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, और इन सभी के अंदर जो मसल है दैट इज द इनर मोस्ट इंटरकॉस्टलिस। दिस इज द इनर मोस्ट इंटरकॉस्टलिस। गेटिंग द पॉइंट? तो बेटा ये पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है। ओके, एंड यस देयर आर द मेम्ब्रेन। दिस इज योर external intercostal membrane, this is your internal intercostal membrane. Okay, now try to learn, we are going to draw the our course of the intercostal nerve, typical intercostal nerve। तो बेटा कोई भी नर्व जो होता है उसके डॉर्सल रूट होते हैं, वेंट्रल रूट होते हैं, जो कहाँ से बनते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से बनते हैं। नाउ सी हियर द ट्रंक इज लाइंग ओवर द अवर पेडिकल। तो बेटा ये क्या हो गया, आपका ट्रंक हो गया। नाउ सी हियर ये ट्रंक जैसे ही निकला ये डॉर्सल रेमाई में डिवाइड हुआ जो कि पीछे गया, और वेंट्रल रेमाई बेटा आगे गया। दिस डॉर्सल रेमाई इज गोइंग ऑन द बैक साइड and then it will supply the muscles of the back and the skin of the back. It will give branch medial and the lateral part, not important. Okay, while this is the प्राइमरी वेंट्रल रेमाई, अभी जो पीछे की तरफ जो गया दैट इज अ डॉर्सल प्राइमरी रेमाई, इससे हमको मतलब नहीं है। वी आर हैविंग
द मेन कंसर्न विथ आवर वेंट्रल प्राइमरी रेमाई जो अब हम बनाने जा रहे हैं, तो बेटे ये वेंट्रल प्राइमरी रेमाई जैसे ही निकलता है, फर्स्ट इट लाइज एट द नेक ऑफ द रिब। हमारा जो रिब होता है उसके पोस्टर एंड के पास में एक हेड होता है, हेड के ठीक पास एक नैरो एरिया होता है दैट इज नोन एज द नेक ऑफ द रिब। तो यहाँ पर ये नर्व निकली और निकलने के बाद immediately it is running on the back side. So you all are aware that here there is the position of the lung with pleura. Diagrammatic presentation कर रहे हैं ना? Yes, here is the lung with pleura. यहाँ पर भी बेटा lung and pleura है. So you can see here that posteriorly this intercostal nerve, this is the our intercostal nerve, it is running between the pleura and the lung and this membrane. What is the name of this membrane? Internal intercostal membrane. ये posterior relation हो गया with VAN relation जो कि हम पहले ही लर्न कर चुके हैं. Now see here, this nerve is running forward. This nerve is running forward and maximum part of the intercostal space it is running in between the second and the third layer. It is running in between the second and third layer. So can you observe here? This is our second layer and here is our third layer. This is our second and third layer. What are the different name? Yes, internal intercostal and innermost intercostalis. तो आपको ये पता होना चाहिए intercostal nerve it runs between the internal intercostal muscle and innermost intercostalis muscle with VAN relation in costal groove from above to the downward position. Getting the point? Now try to understand. ये नर्व आ रही है, अब बेटा ये नर्व आकर के यहाँ पर एक ब्रांच देगी. Do you remember what was the name of this branch? Yes, this was our lateral side. बेटा ये laterally दे रही है, that's why it is lateral cutaneous nerve of thorax. तो ये lateral cutaneous nerve of the thorax है जो कि पीछे और आगे की तरफ ब्रांच दे रही है. Okay, now this nerve is running forward. अब बेटा ये नर्व आगे की तरफ आ रही है and then this nerve is running anteriorly. Getting the point? और आगे की तरफ रन करते हुए फिर जब वो स्टर्नम के पास आती है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, नियर द स्टर्नम, यहाँ पर अंदर में स्टर्नम के सरफेस में एक मसल अटैच होती है दैट इज नोन एज द स्टर्नोकॉस्टेलिस. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मसल? स्टर्नोकॉस्टेलिस. दिस मसल इज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर योर कंसिडरेशन दैट दिस इज नोन एज मसल स्टर्नम और रिब के साथ जुड़ी रहती है, दैट्स व्हाई स्टर्नोकॉस्टेलिस. गेटिंग द पॉइंट? अब ये जो स्टर्नोकॉस्टेलिस मसल होती है यहाँ पर इसे चिपक करके एक आर्टरी रन करती है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आर्टरी? दिस इज द अवर इंटरनल मैमेलरी आर्टरी. आपको अपर लिम याद आ रहा है? इन द अपर लिम वी हैव स्टडीड दैट इंटरनल मैमेलरी आर्टरी सप्लाइंग द ब्रेस्ट फ्रॉम द मीडियल साइड. तो बेटा ये क्या है? इंटरनल मैमेलरी आर्टरी. और इसके साथ में हमारे रिलेटेड वेन्स भी रन करते हैं. सो दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. ओके, अब क्या हो रहा है? दिस इंटरकॉस्टल नर्व नियर द स्टर्नम इट इज क्रॉसिंग दिस स्टर्नोकॉस्टलिस ऑन द फ्रंट साइड. फिर ये इंटरनल थोरेसिक वेसल्स को क्रॉस करी, देन इट इज पियर्सिंग द लेयर. आप बता सकते हो ये कौन सी मसल है? यस, इट इज द आवर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल सेकेंड लेयर and then it is piercing the membrane. What is the name of the membrane? It is piercing the extra intercostal membrane. Okay, so after this all it is coming out, then it is dividing into the medial and the lateral branches. Okay, so this is known as anterior cutaneous nerve of thorax. Okay, so look at here, what are the different nomenclature? This is known as lateral cutaneous nerve of thorax, while here is your anterior cutaneous nerve of thorax. Getting the point? ये जो वेसल्स आपको दिख रहे हैं इसका क्या नाम है? These are known as our internal thoracic vessels. Also you can say the internal mammillary vessels. Okay,
and this is our intercostal nerve that is already we have written. Okay, so these are the different your branches. इंटरनल थोरेसिक वेसल्स। अगर हम सिमेट्रिकल डायग्राम बनाना चाहे तो बेटा एक बार फिर से क्विक रिवीजन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। देयर इज डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट, then they are making the trunk, then this trunk is giving the branch dorsal rami and the ventral rami. This dorsal rami is going on the back and it is giving the cutaneous and the muscular branches medial and on the lateral side. और फिर उसके बाद ये जो रन कर रहा है दिस इज द वेंट्रल प्राइमरी rami. This is our typical intercostal nerve. This nerve is running between the second and third layer. On the lateral side it is giving the lateral cutaneous nerve of the thorax, which is giving the dorsal and ventral branches, and then it is running on the front side in front of the internal thoracic vessels, then it is piercing the structures and again dividing into the medial and lateral branches. So this is the course of the typical intercostal nerve. बेटा ये कोर्स ये डायग्राम आपको आता है एग्जाम में, यू हैव टू मेक प्रैक्टिस। ओके, और इसका जो अप्लाइड पार्ट है आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज थोरेकोसेंटेसिस। Getting the point? Okay, so after this all, now we are going to talk about the next। अब बेटा यहाँ पर कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक थोड़ा सा व्यू हम इसका देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू लुक फॉर द आर्टरी। हमने बेटा मसल के बारे में देखा, नर्व के बारे में देखा, नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द आर्टरी। Intercostal arteries, try to understand there are the two intercostal arteries, two types. What are the two types of the intercostal arteries? मेन होता है posterior intercostal artery. So what you have to remember, yes there is the posterior intercostal artery as well as there is the anterior intercostal artery. Getting the point? तो ये जो posterior intercostal artery होता है, there is one posterior intercostal artery in each space, और ये आर्टरी जो होती है ये मेन है, लार्ज होती है, while there are the two anterior intercostal artery in each space, लेकिन ये स्मॉल आर्टरीज है तो ये मेन आर्टरी नहीं होती। ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी अबाउट द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक फॉर द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। इट विल नॉट बी आस्क्ड, लेकिन जस्ट एक हम रिव्यू करने जा रहे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। You can see there are total first to 11 posterior intercostal arteries. Okay sir, 12th को आप intercostal artery नहीं कह सकते because it is the subcostal artery. Okay sir, make easy the topic. See here, these 3 to 11, these 3rd to 11 arteries are direct branch from descending thoracic aorta. These are the direct branches from the descending thoracic aorta. Getting the point? These are direct branches from the descending thoracic aorta. लेकिन ये जो फर्स्ट और सेकंड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी है ये कहाँ से निकल रही? कैन यू सी दीज आर ब्रांच फ्रॉम द सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। तो बेटा यहाँ से एमसीक्यू आता है, फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, फर्स्ट एंड सेकंड
पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी दे आर नॉट द ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, क्योंकि डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा बेटा यहाँ स्टर्नम के पास से आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड स्पेस ऊपर है, तो इसको ऊपर किसी आर्टरी से आना चाहिए, सो इट इज कमिंग फ्रॉम द सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, सो इजी। अब ये जो सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी वो कहाँ से आ रही है, कैन यू सी इट इज कमिंग फ्रॉम हियर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आर्टरी, दिस इज नोन एज कॉस्टोसर्वाइकल ट्रंक। यस, द सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी इज कमिंग फ्रॉम द आवर कॉस्टोसर्वाइकल ट्रंक। और ये जो कॉस्टोसर्वाइकल ट्रंक है ये किसकी ब्रांच है, यस दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द ब्रांच फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी। अगेन मैं आपको फिर से ये बता रहा हूं, हम हेड नेक फेस में भी इसको स्टडी किए थे, अपर लिम्ब में भी देखे थे, अभी फिर से सबक्लेवियन आर्टरी इट इज हैविंग द ब्रांचेस, व्हाट आर द ब्रांचेस, VITCD, V for vertebral artery, I for internal thoracic artery, T for thyrocervical trunk, C for costocervical trunk, and D for dorsal scapular artery। गेटिंग द पॉइंट। तो इसमें से आप इसमें ध्यान दीजिए कि सबक्लेवियन आर्टरी की जो ब्रांच है दैट इज द कॉस्टोसर्वाइकल ट्रंक। यस, these are the branches from first part of the subclavian artery, this is the branch from the second part, and this is the branch from the third part। ओके, देयर आर वेरिएशंस आर आल्सो, लेकिन आप इतना याद रख सकते हैं। तो बेटा ये जो कॉस्टोसर्वाइकल ट्रंक है, आप देख रहे हो ये जो सबक्लेवियन आर्टरी उससे क्या निकली, कॉस्टोसर्वाइकल ट्रंक। इसी कॉस्टोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच कौन सी है, सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, ये दे रही है फर्स्ट और सेकंड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। सो दिस इज द जस्ट वन शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स एंड द डायग्राम। अगला, नाउ सी हियर we are going to talk about the our anterior intercostal artery, so you can follow this image, you can follow this image, yes, just wait a few minutes। So now we are going to look for the our yes एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। तो यहाँ से कुछ आपके एमसीक्यूज आते हैं, थ्योरी में ये नहीं पूछा जाता। सी हियर, दिस इज आवर सबक्लेवियन आर्टरी। नाउ लुक हियर, ये सबक्लेवियन आर्टरी की एक ब्रांच है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, आल्सो नोन एज द इंटरनल मैमेलरी आर्टरी। यस, दिस इंटरनल थोरेसिक आर्टरी इज कमिंग डाउन, it is running behind the our costal cartilages, and then here at this particular space, this is your sixth intercostal space, you can count first, second, third, fourth, fifth, and this is the sixth. So this is the MCQ. In sixth intercostal space there is a termination of the internal thoracic artery, this is your MCQ। next MCQ, it is dividing into which space, आप ये देख रहे हो क्या, yes this is dividing into the one artery which is supplying to the muscles as well as the diaphragm, तो इसका नाम क्या होगा, मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी। जबकि दूसरी आर्टरी जो है इट इज गोइंग to supply the epigastric part, do you remember within the rectus sheath
the superior epigastric artery was making the anastomosis with the inferior epigastric artery. Getting the point? So what you have to remember, these are the same things. तो अब आपकी कहानी क्या हो गई कि internal thoracic artery is dividing into the sixth intercostal space into the two branches. So MCQ, these are two branches. What are the two branches? Yes, मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी, जैसा कि नाम बोल रहा है, ये फ्रेनिक मींस डायफ्राम को सप्लाई करेगा. सो दिस इज योर एमसीक्यू, आर्टरी सप्लाई ऑफ द डायफ्राम, इट इज वन ऑफ देम. और बेटा दूसरा सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी विच विल गो इनसाइड द रेक्टस शीथ. हम डायफ्राम वाला चैप्टर देख चुके हैं, रेक्टस शीथ वाला चैप्टर देख चुके हैं, इसके अंदर का ये कंटेंट होता है. नाउ लुक हियर वन अनदर डायग्राम फॉर यू. एक और चीज बेटा, यही वो आर्टरी है विच इज द बेस्ट आर्टरी फॉर द अवर यस कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग. अब ग्रेट स्टेफनस वेन को ऑप्ट नहीं किया जाता. दिस इज द बेस्ट आर्टरी. You can observe this another diagram. Yes, these are not important for the theory. You can see this internal thoracic artery is coming down. और आप देख रहे हो क्या कि upper six space में these entry intercostal arteries, these are two in each space. You can see here in each space two, one two, one two, one two. In each space two entry intercostal arteries are there and they are very short. अगला चीज आप देख रहे हो क्या, अप टू द सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस दे आर डायरेक्ट ब्रांच फ्रॉम internal mammillary artery, also you can say internal thoracic artery. Okay sir. While in seventh, eighth and the ninth space they are branch from not from the internal mammillary artery, they are branch from the lateral dividing artery, that is musculophrenic artery. So this is your MCQ. और इसके बाद बेटा 10th 11th 12th स्पेस, वहां पर ये एंटेरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी नहीं होती. Getting the point? So these are the different MCQs. These are supplying the intercostal spaces as well as these are responsible for the blood supply of the intercostal muscles. अब इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा पार्ट हमारे इंटरकॉस्टल वेन्स के बारे में. ओके, सो दिस इंटरकॉस्टल वेन्स समटाइम्स इट इज आस्क्ड ओनली द डायग्राम. बेटा थोरेक्स पार्ट जो है वो सबसे इजी पार्ट है. इट इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट इन आवर अपर लिम्ब, इन आवर एनाटॉमी. बहुत जल्दी होता है, इससे कॉन्फिडेंस गेन होता है. यस, दिस इज योर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरकॉस्टल वेन्स. थ्योरी में ये नहीं आएगा, ये आएगा तो सिर्फ ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम. अगर लास्ट टाइम आपको थोरेक्स पढ़ के जाना है तो आप एक ही चीज को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना, दैट इज योर ब्लड सप्लाई ऑफ आवर हार्ट. और अगर ये आप प्रिपेयर कर चुके हो तो दूसरा चीज अगर आपको प्रिपेयर करना है तो लंग में आप पढ़ोगे ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट. गेटिंग द पॉइंट? So this is the this is your diagrammatic presentation. Okay, these are the different openings of the our intercostal space. Getting the point? Okay, so what I want to tell you, yes, these are the openings of the intercostal veins into the various system. तो बेटा आप ये जो vein system है इसमें आप properly observe कर रहे हो that there are different kind of the intercostal veins. और ये किस में open हो रहे हैं? These all are getting open into the our veins, and these veins are, you can observe
नॉट कंप्लीटली प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। ओके, तो इस वेन सिस्टम को हम बोलते हैं ए जाइगस वेन। कैन यू सी, ये एक वेन आपको दिख रही है, आई एम यूजिंग द रेड कलर, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑन द राइट साइड ऑफ द आवर थोरेसिक कैविटी। इसका एग्जैक्ट कॉपी बॉडी में नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? बेटा हमारे बॉडी में ग्रेट सेफेनस वेन राइट में भी है, लेफ्ट में भी है, सबक्लेवियन वेन, एक्सिलरी वेन, cephalic vein, basilic vein, every vein is having the copy, but this vein is not having exact copy. A means absent and zygos means copy, or you can say couple. तो इसकी कॉपी नहीं है, इसका कपल नहीं है, that's why it is known as a zygous vein. Now this vein is having half copy. तो ये जो हाफ कॉपी होती है उसको हम बोलते हैं हेमी एजाइगस वेन। ओके, और इस हेमी एजाइगस वेन को एसेस करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक और वेन होती है, दैट इज अ एसेसरी हेमी एजाइगस वेन। गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो एजाइगस वेन है वो कैसे बनता है, राइट सबकॉस्टल वेन, लंबर एजाइगस वेन और राइट असेंडिंग लंबर वेन, इनके यूनियन से बनता है। तो एक एक करके हम ये डायग्राम को प्रैक्टिस करते हैं। यस, दिस सिस्टम इज नोन एज एजाइगस वेनस सिस्टम। तो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपके एग्जाम में आ जाता है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू ड्रॉ। So try to learn. Suppose here is our right brachiocephalic vein and here is our left brachiocephalic vein. As you know, the right and left brachiocephalic vein, they unites together and forms the superior vena cava. तो ये बन गया आपका superior vena cava. Okay. Now see here at the lower side. Suppose here is the inferior vena cava. What is the name below? Yes, this is our inferior vena cava. Getting the point? Okay. So now see here that there is the one vein, एक वेन की कॉपी है। तो बेटा ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज मेकिंग द आर्च ओवर द आवर पल्मोनरी वेन। हमारे लंग है जो राइट और लेफ्ट लंग, राइट लंग की बात करेंगे तो उसके पल्मोनरी हाइलम के ऊपर आर्च बनाता है। सो दैट इज आवर एजाइगस वेन, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज फॉर्म। बेटा 12th वेन आता है। ओके, और ये 12th वेन, इसे हम क्या कहेंगे, 12th वेन इज नॉट करेक्ट नेम, दिस इज सब कॉस्टल वेन। ये 12th वेन जो है वो किसके साथ मिलता है, इट इज मीटिंग विद द वन वेन विच इज कमिंग फ्रॉम द लंबर साइड। तो ये लंबर वेन है, ये ऊपर की तरफ चल रहा है, दैट्स व्हाई लंबर असेंडिंग लंबर वेन। ओके, सो दिस 12th वेन इज मीटिंग विद द राइट लंबर असेंडिंग वेन, और इसके साथ कभी कभी एक और एक्स्ट्रा वेन इसके साथ यूनाइट हो सकती है, दैट इज नोन एज लंबर एजाइगस वेन। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द डॉटेड लाइन। अब ये वेन्स जो है आपस में फ्यूज होकर के क्या बनाती है, यस दे आर मेकिंग अवर वन वेनस लॉन्ग वेन चेन विच इज ओनली प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। ये लेफ्ट साइड में नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए जाइगस वेन, एंड देन इट इज मेकिंग द आर्च ओवर द रूट ऑफ द पल्मोनरी हाइलम। राइट लंग के पल्मोनरी हाइलम में ये रूट एक आर्च बना रहा है। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज अवर ए जाइगस वेन। कहाँ ओपन हो रहा है, यू कैन ऑब्जर्व इट इज ओपनिंग इनटू द सुपीरियर वेना केवा। दिस इज ओपनिंग इनटू द सुपीरियर वेना केवा। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच वी हैव शोन टिल नाउ। नाम देते हैं बेटा इसका। यस, दिस इज योर राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, हियर इज आवर लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, both are uniting to make the superior vena cava. Getting the point? अभी आपने क्या ड्रॉ किया, ए जाइगस वेन। हाउ दिस ए जाइगस वेन इज फॉर्म, जस्ट गिव द nomenclature. This is formed by the right side subcostal vein. And what is the name of this vein, this is our right side, that's your right। कमर के पास से आता है, नीचे से ऊपर चढ़ता है, that's why it is known as ascending, right ascending, coming from the lumbar region, that's why lumbar vein, right ascending lumbar vein।
Okay, and sometimes one another vein is present. What is the name of this different vein? This is known as our lumbar azygous vein. This is known as our and yes, here is the inferior vena cava. Getting the point? And you can see here, yes, this is the site where the right and left renal veins are opening. So these are renal veins. तो ये जो lumbar azygous vein है, it is just at the junction of the right renal vein and the inferior vena cava. Okay, now try to understand how the different veins are getting open एक एक करके. The main venous drainage of the intercostal space is our posterior intercostal vein, or simply you can say the intercostal vein. So just to try to understand, I am giving the numbers. So you can observe I am using the purple color to differentiate the first intercostal vein. बेटा ये सबसे ऊपर होता है फर्स्ट इंटरकॉस्टल वेन, तो ये सबसे ऊपर है तो इसको पास कौन पड़ता है? यस, ब्रेकियोसेफेलिक वेन इज क्लोज, तो ये डायरेक्टली ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन कर गया. कौन? फर्स्ट. रिमेंबर हम किसकी बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट द अवर राइट साइड इंटरकॉस्टल वेन. तो अगर आपसे पूछा गया एम्स 2018 में अचानक क्वेश्चन आ गया था दैट फर्स्ट लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन ड्रेन्स इनटू द बाउंसर, लोगों से ये क्वेश्चन प्रॉपरली बन नहीं पाया. बेटा यही टॉपिक था. तो पढ़ी हुई चीज कभी बेकार नहीं जाती, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है. गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द फर्स्ट राइट इंटरकॉस्टल वेन. इट इज ओपनिंग इनटू द राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, यू कैन ऑब्जर्व. अब हम और आगे बढ़ते हैं. सेकंड उसके नीचे रहेगा. तो ये जो सेकंड है, थर्ड है और जो फोर्थ है, these all are uniting together and they are making the common superior intercostal vein, and then it is draining into the, it is opening into the our azygous vein. So what I want to tell you, this is the second, then here is the third, and this is the fourth. So these are opening into the common channel. What is the name of this common channel? Yes, this is known as our right superior intercostal vein. इसमें कौन ड्रेन कर रहा है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंटरकॉस्टल वेन, एंड देन इट इज ड्रेनिंग इनटू द एजाइगस वेन. रिमेंबर दिस इज आवर ए this is our azygous vein. Getting the point? Yes, this is our azygous vein. Now अब इसके बाद क्या होगा? See here, next the fifth is directly opening into the azygous vein. Then remember sixth, seventh, eighth, they are also opening directly here. फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ. इसके बाद बेटा आपके नाइन्थ, टेंथ, इलेवंथ, ये सारी चीजें यहीं ओपन हो रही है. 9, 10th, 11th, एंड दिस राइट सब कॉस्टल वेन इज एक्चुअली द 12th, लेकिन इसे हम सब कॉस्टल वेन नहीं कहते. सो 5 to 11 ऑल आर ड्रेनिंग, all intercostal vein, they are directly draining into the azygous vein complete. Okay, while now look on the our left side. अब बेटा हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं. ओके, तो जिसको जो पास पड़ेगा वहां वो ड्रेन करेगा. अब हम सॉरी लेफ्ट साइड, दिस इज माय लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड की अगर हम बात करेंगे तो यस, फर्स्ट is very close to the our left brachiocephalic vein. So what you can say that this is our first left side, our intercostal vein. So this is the your first. Next come to here the second,
then third, and then fourth. Okay, these all are opening, into the our सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन, और इसको भी कौन पास पड़ रहा है? यस, यही लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन. सो यू कैन रिमेंबर द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. और यही आपके एम्स में क्वेश्चन आया हुआ था. क्वेश्चन था व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेन? यस, दिस इज नोन एज आवर लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन. यस, MCQ. This was the question from the AIMS near May 2018 pattern. Okay, कि लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन कहाँ ओपन होता है? कैन यू सी इट इज वेरी क्लोज टू द अपर पार्ट. यस, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन. ये बेटा एजाइगस, हेमी एजाइगस, एसेसरी हेमी एजाइगस इससे दूर है. जिसको जो पास पड़ेगा वहां वो ट्रेन करेगा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. यस, देयर इज द फिफ्थ, सिक्स्थ, seventh and eighth vein. So try to make this all the veins parallel to the our right side. So as the parallel, तो बेटा फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, इसका लेवल अप्रोक्सीमेटली इसी लेवल पे आप ड्रॉ करेंगे तो ये सिमेट्रिकल दिखेगा, प्रॉपर दिखेगा. सो यू कैन गिव द नेम फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ. ओके, नाउ लुक हियर, दिस ऑल द वेन्स आर ओपनिंग इनटू द वन वेन. और वैसे ही यस, इसका नाम हम बाद में देते हैं. यस, दीज आर ओपनिंग इनटू द वन वेन, और ये इसी लेवल पे एजाइगस वेन में ड्रेन होगा. ओके, एंड इन द सेम वे देयर इज द नाइन्थ, टेंथ एंड द 11th. ओके, और यहाँ पर आप 12th भी ड्रॉ कर सकते हो. 12th, these all are draining into the one another venous system, and it is opening near the ninth vertebral level, ninth intercostal vein. ओके, तो अब हम इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं. दिस इज half copy of the azygous vein, that's why it is known as hemi azygous vein. Getting the point? जबकि ऊपर वाला जो है वो हेमी एजाइगस वेन को एसेस कर रहा है, हेल्प कर रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एसेसरी हेमी एजाइगस वेन. Getting the point? Okay, clear? So how this hemi azygous vein is formed? Yes, this is the 9th, 10th, 11th. It is formed by the 12th, or you can say, better to say, this is our subcostal vein on the left side, left subcostal vein, as well as same other veins, just like the right side. There is the our left ascending lumbar vein. It is uniting with the our left subcostal vein. Okay, and sometimes there is the contribution from the lumbar azygous vein, not always in this way. Okay, so this is our left ascending lumbar vein, और इसको आप क्या नाम दे सकते हो? दिस इज आवर लेफ्ट lumbar azygous vein. Getting the point? So these are the different veins and opening into the our azygous and the accessory hemiazygous vein. So only this diagrammatic presentation is asked in your university exam, और कभी कभी से अनएक्सपेक्टेड MCQs भी आ जाते हैं, इसलिए बेटा आप इसको प्रैक्टिस करोगे. सो दिस इज द योर नोट्स. आप इसे बुक से भी ऑब्जर्व कर सकते हो एंड यू कैन गो थ्रू द नोट्स ऑल्सो. जब आप बेटा उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझोगे तो आपको ईजी लगेगा. इफ यू विल ट्राई टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स साइमल्टेनियसली,
तो ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसलिए आपने इसको स्टेप बाय स्टेप समझना। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसी डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ किया है, तो आपको ईजी लगा। ओके, सो आफ्टर दिस ऑल द इंटरकॉस्टल वेन, ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अवर फर्दर टॉपिक। बेटा अब हम चलते हैं हमारे मीडियास्टाइनम की तरफ। अगेन दिस मीडियास्टाइनम इज नॉट important, but little information about this mediastinum must be there. Thorax is the topic of the anatomy to gain the confidence. ओके, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म होता है और इसके साथ में ये जो टॉपिक है इसमें से बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आप इसको टारगेट कर सकते हो। सो वी आर लुकिंग फॉर द mediastinum. So try to understand what is the mediastinum. Yes, interpleural space, or you can say space between the two lungs known as the mediastinum. तो mediastinum कुछ नहीं है, yes, it is the space between the two lungs, राइट लंग और लेफ्ट लंग के बीच में जो छोटा सा स्पेस है दैट इज नोन एज द मीडियास्टाइनम। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे चल करके क्लिनिकल में आप एक टर्मिनोलॉजी बार बार देखोगे, दैट इज योर मीडियास्टाइनल ट्यूमर, मीडियास्टेनाइटिस, सच काइंड ऑफ द सिचुएशंस यू विल सी। इसलिए बेटा आपको ये याद रखना है कि मीडियास्टाइनम का मतलब क्या होता है। अगर आप मीडियास्टाइनम का मतलब ही नहीं समझोगे तो आगे चल करके पैथो में, मेडिसिन में, सर्जरी में, रेडियोलॉजी में आपको प्रॉब्लम होगा। So here is a diagrammatic presentation of the space mediastinum. See here, again this mediastinum is divided into the two parts by one imaginary line. Can you see this imaginary line? Yes. ये जो imaginary line है ये हमारे mediastinum को superior mediastinum और inferior mediastinum में divide करती है। Okay sir. This imaginary line is passing from, can you see it is passing from sternal angle of Lewis up to the, yes, lower border of T4. Yes, वो मैजिकल लेवल आ चुका। गेटिंग द पॉइंट? ये लेवल से कई सारे एमसीक्यूज आपके आते हैं। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज द लोअर बॉर्डर ऑफ द T4। इसके ऊपर जो भी आपका स्पेस है दो लंग के बीच में, दो प्लूरा के बीच में, दैट इज द सुपीरियर। इसके नीचे जो भी दैट इज द इंफीरियर। अगेन दैट inferior mediastinum is divided into the anterior mediastinum, middle mediastinum and posterior mediastinum. Getting the point? Okay, now look at the another diagram to correlate that fact with the contents of the mediastinum. Again I am telling you it is not important topic, but just for your proper concept and the clinical orientation. Can you see this is the same diagram? Okay, so in this diagram again you can observe the same things. External angle of the Lewis, there is the imaginary line is passing at the lower border of the T4. You can observe in the diagram. Okay, now see this is the your superior mediastinum. So which is the important structure in the superior mediastinum? Yes, you can see there is the arch of aorta. आप यहाँ पर देख रहे हो क्या बेटा? आर्च ऑफ एओर्टा किस लेवल पे चालू हुआ? लोअर बॉर्डर ऑफ द T4, देन इट इज रनिंग अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लैटरली, और फिर ये कहां पर खत्म हुआ? लोअर बॉर्डर ऑफ द T4। इट इज एंडिंग एट द अवर लोअर बॉर्डर ऑफ द T4। सो इजी। ये है आपका T4 वर्टिब्रल लेवल का इंपॉर्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द inferior mediastinum is divided by the presence of the heart within pericardium। ये जो है कहाँ होता है? हमारा मिडिल मीडियास्टाइनम में। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे मीडियास्टाइनम भूल जाओ, मिडिल मीडियास्टाइनम द मेन कंटेंट इज हार्ट विद द पेरिकार्डियम। इसके आगे जो आपको स्पेस दिख रहा है दैट इज द एंटीरियर मीडियास्टाइनम,
और हार्ट और पेरिकार्डियम के पीछे जो आपको दिख रहा है दैट इज अ पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम. व्हाट आई वांट टू टेल यू, द आर्च ऑफ एओर्टा इज द मेन कंटेंट ऑफ द सुपीरियर मीडियास्टाइनम. The middle mediastinum, the main content is the H, yes, heart and pericardium. Anterior mediastinum, it is very narrow, you can forget it. Sternopericardial ligaments are there. Thymus, small rudimentary part is there, you can say. लेकिन बेटा posterior mediastinum आप याद रखोगे. Can you see the descending thoracic aorta is coming from here, esophagus is coming from here, और बेटा trachea भी यही होता है. So what I want to tell you that here the different structures are there. What are the different structures? Yes, esophagus is here, then trachea is here, then descending thoracic aorta is here. बट अभी आप लोगों को पता होगा कुछ दिनों पहले हमने 15 दिन की सर्जरी की क्लास कंप्लीट की थी. उस समय आप लोगों के हेड नेक फेस न्यूरो एनाट ये सभी की क्लासेस चल रही थी. ओके, तो बेटा वहां पर हमने सर्जरी में स्टूडेंट्स को एक चीज बताई. क्या चीज थी बेटा? दैट ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला सर्जरी which is related with the surgery of the trachea and the esophagus. Which approach is good approach? ये सर्जरी का क्वेश्चन है. बट आप खुद कॉमन सेंस लगाओ. अगर आप नहीं जानते लेकिन अगर आपका एनाटॉमी स्ट्रांग है तो क्या आप ये आंसर कर सकते हो? यस, ट्रेकिया और इसोफेगस है पीछे पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में. तो क्या आप आगे स्टर्नम को ऐसा रिमूव करोगे, फिर हार्ट और पेरिकार्डियम को हटाओगे, फिर उसको ऑपरेट करोगे? अरे क्यों करोगे बेटा, ये पीछे है ना, तो पीछे से जाओ ना. बेस्ट अप्रोच इज द पोस्टीरियर अप्रोच. आगे समझो, ठीक पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, तो क्या आप बीचों बीच में सारे स्पाइन वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड को कट करके जाओगे? आदमी को मारना है क्या? नहीं. posterior but on the lateral side, so the posterolateral approach is the best approach for the any kind of the surgery related to the trachea and the esophagus. This is the direct integration of the anatomy with your surgery. So any kind of the surgery related with the trachea and the esophagus, best approach is posterolateral सर्जरी. तो बेटा ये आपका सर्जरी का क्वेश्चन है. ओके, तो बेटा हमारा साथ अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर तक नहीं, आगे पैथो और फार्मा चलने वाला है. मैं आपका माइक्रोबायोलॉजी चलेगा, फॉरेंसिक मेडिसिन चलेगा. जैसे ही आप फर्स्ट ईयर को क्रॉस कर जाओगे आराम से पढ़ेंगे. हमारे पास पूरे 6 महीने का 8 महीने का टाइम होगा. एक एक पेज को हम ट्रेस करेंगे, पूरे एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हुए चलेंगे. और इस ऐप में बेटा टेस्ट एंड डिस्कशन की भी फैसिलिटी है, एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे. ओके, तो ये सारी चीजें हम करते हुए चलेंगे. और इसके साथ में फिर जब आप आगे जाओगे तो आपका ईएनटी ऑप्थेल्मोलॉजी और पीएसएम सब्जेक्ट आएगा, उसकी भी हम क्लासेस करेंगे. और बेटा उसके बाद मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ये सारी क्लासेस हम एक एक करके लेते हुए चलेंगे. ओके, सो वी विल डू इन दिस पार्ट वन बाय वन. लेकिन सभी सब्जेक्ट के बेस में बेटा आपको एनाटॉमी जरूर मिलेगी. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल द थिंग्स. तो ये आपका एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था मीडियास्टाइनम के बारे में. ओके, सो आफ्टर दिस मीडियास्टाइनम नाउ ट्राई टू लर्न अबाउट द अवर लंग पार्ट. ओके, तो अब हम लंग पार्ट को देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. और जब हम लंग को पढ़ेंगे तो इसी के साथ हमको देखना है थोड़ा सा ट्रेकिया के बारे में. सो जस्ट सी हियर द ट्रेकिया, और ये ट्रेकिया का डिवीजन कैसे होता है. सो नाउ लुक हियर, आई एम यूजिंग दिस डायग्राम. अगेन दिस ट्रेकिया विल नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. लेकिन जब हम ट्रेकिया का प्रॉपर नॉलेज रखेंगे तब हमसे लंग का ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट वाला पार्ट प्रॉपरली बनेगा. दैट्स व्हाई वन लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द आवर ट्रेकिया. गेटिंग द पॉइंट? तो बेटा ट्रेकिया जो है वो आया, फिर ये किस में डिवाइड हुआ? यू नो वेरी वेल दैट इट इज डिवाइडिंग इनटू द राइट एंड द लेफ्ट ब्रोंकस. ये सीधा सीधा किसको सप्लाई करता है? इट इज सप्लाइंग टू द लंग.
इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस। लेकिन राइट साइड में आपको पता है 3 लोब होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, यस दीज आर नोन एज आवर सेकेंडरी ब्रोंकस, क्योंकि ये लंग के लोब को सप्लाई करेगा। राइट साइड में 3 लोब हैं, इसलिए 3 सेकेंडरी ब्रोंकस। अब इसके बाद ये फिर से डिवाइड होते हैं और लंग के छोटे छोटे सेगमेंट को सप्लाई करते हैं। दैट स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ द लंग are known as bronchopulmonary segment, which is very important topic for the your anatomy theory point of view. Okay, so we are going to learn about that part. Okay, so now see here, these are the different things. You will see this all the lung part, searching for the trachea. Yes, here all the things are given. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राइट और लेफ्ट ब्रोंकस के बीच में एक एंगल बनता है। दैट एंगल बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट ब्रोंकस इज नोन एज, यस, the mother of the Tamur. How? See here, see here, ये देखो बेटा, ये आपका क्या आ रहा है, ट्रेकिया। देन दिस इज द बाइफर्केशन साइट of the trachea. This is known as the carina. Who is the carina? You know very well, mother of Tamur. Yes, it is known as the carina. Remember, this is the our carina. Getting the point? So what is the angle of the carina? See here, it is 25 and 45. So total there is 70 degree. Okay, you know very well that right bronchus is straight, इसलिए बेटा ये कम एंगल बना रहा है, while the left bronchus is having more curvature, that's why it is making that 45 degree. Okay, और इसके बाद आप देख रहे हो कि ये प्राइमरी ब्रोंकस है, देन इट इज डिवाइडिंग इनटू द 3 सेकेंडरी ब्रोंकस एंड देन इट इज सप्लाइंग इनटू द टर्शियरी ब्रोंक्यूल. Okay, and these are supplying the small segments of the lung, that small segments of the lung known as our, yes, they are known as our bronchopulmonary segments. Getting the point? Okay, so now try to understand that all the things one by one. इसमें बेटा एक अपडेट है, कैन यू सी, दीज आर द लाइंस फ्रॉम द अवर ग्रेज एनाटॉमी. बेटा ये बहुत पुराना क्वेश्चन है कि ट्रैकियल बाइफर्केशन कहाँ होता है. सो जस्ट सी हियर द फैक्ट. हमारे कई सारे सीनियर्स आपको मिलेंगे कॉलेज में, वो बहुत पढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, खूब ज़्यादा स्टूडियस हैं, ओके, बहुत बढ़िया पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या होता है जब एग्जाम होता है तो अक्सर आप उनसे बोलते चलो अरे एग्जाम पेपर बहुत ईजी आया था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स किए, ओके, अटेम्प्ट किए, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो उनका दूर दूर तक सिलेक्शन नहीं होता. ओके, और हम अपनी किस्मत को कोसते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया. सी हियर, anatomy is not the stable subject, it is dynamic subject. Getting the point? Yes, it is dynamic subject. I am going to tell you the updates from the Grey's Anatomy 41st edition. बेटा आपके पुराने बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन रिसेंट बीडी चौरसिया अभी रिसेंट अपडेट में इसने भी इसको क्लियर कर दिया है. ओके, सो वेयर इज द bifurcation of the trachea? Answer was the T4. But now look here, one person, Mirza Lily, came in the 2012 and with the various his colleagues friends he dissected the 153 bodies. उसने 153 बॉडी में डायसेक्शन किया. ग्रेज एनाटॉमी में ये क्लियर कट लिखा हुआ है. ओके, और उसने बताया कि हमारा जो ट्रेकिया है ये बाइफर्केट कर रहा है कहाँ पर, यस, अपर हाफ ऑफ द सिक्स्थ थोरेसिक
वर्टिब्रा लोअर देन वॉज प्रीवियसली बिलीव्ड। पहले बेटा सोचा जाता था कि ये एक्सटर्नल एंगल के पास में बाइफर्केट होता है T4 वर्टिब्रल लेवल पे, लेकिन ग्रेस एनाटॉमी जो है क्लियर कट बेटा, ये क्लियर कट लिख दे रहा है। यू कैन सी दिस लाइंस, दीज आर द वेरी वेरी हाई यील्डिंग लाइंस, अपडेट्स फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस पॉइंट। ओके, कि हमारा ट्रेकिया का बाइफर्केशन शिफ्ट हो रहा है। यू कैन सी ही टोल्ड दैट द लेवल एट विच द ट्रेकिया बाइफर्केट्स मूव्स डाउन ऑन एन एवरेज अ मीन ऑफ 3 mm पर डिकेड, यानी कि दिस इज द 10 ईयर चैलेंज। आपको पता है कुछ दिनों पहले 10 ईयर चैलेंज करके चीजें आ रही थी, लोग 10 साल पहले की फोटो खींचते थे, फिर 10 साल बाद की अभी की फोटो खींचते थे और बोलते थे 10 ईयर चैलेंज। बट वो सब बकवास था। दिस इज द रियल 10 ईयर चैलेंज। यू कैन सी इन इच 10 ईयर tracheal bifurcation is shifting 3 mm। ओके, 3 mm पर 10 ईयर, ये है आपका रियल 10 ईयर चैलेंज। ओके, एवरी डिकेड। ओके, इसका मतलब क्या है समझो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बेबी 1990 में पैदा हुआ था तो उसका ट्रेकियल बाइफर्केशन, सपोज 1980 के समय जो पैदा हुआ था उसका ट्रेकियल बाइफर्केशन T4 में था, तो 1990 में बेटा 3 mm नीचे आ गया। फिर जो बेबी सन 2000 में पैदा हुआ उसमें 6 mm नीचे आ गया। फिर 2010 में जो पैदा हुआ उसमें और 9 mm नीचे आ गया। तो धीरे धीरे ट्रेकियल बाइफर्केशन शिफ्ट हो रहा है। सो आवर बॉडी इज नॉट फिक्स, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशन इन ईच बॉडी। बेटा मेरे बॉडी में और आपके बॉडी में कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा वेरिएशन आपको मिलेगा, नर्व में, आर्टरी में, मसल फाइबर्स में। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। टेंशन नहीं लेना, ऐसे मत सोचना कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा ट्रेकियल बाइफर्केशन कहाँ था T4 में, फिर मैं 10 साल का हो गया तो 3 mm नीचे आ गया, फिर उसके बाद जब मैं 20 साल का होने जा रहा हूँ तो 6 mm हो जाएगा। ऐसा करते करते 50 साल का होऊंगा तब तक डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन में बाइफर्केट होगा। बेटा ट्रेकिया एब्डोमेन में नहीं पहुंचने वाला। कुछ लोग इसी टेंशन से मरे जा रहे हैं कि ट्रेकिया का बाइफर्केशन फिर एक टाइम आएगा कि एब्डोमिनल कैविटी के बाद पेल्विक कैविटी में होगा। ओके, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे ट्रेकिया का बाइफर्केशन हो रहा है। कुछ लोग सोचेंगे और अगर मैं ज्यादा जी गया तो फीमोरल ट्रायंगल में बाइफर्केशन हो, एक दिन आएगा पॉप्लिटियल फोसा में होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। व्हाट यू टू रिमेंबर, जनरेशन ऑफ द बर्थ। ओके, और इसके साथ में इसने क्लियर कट लिख दिया है इन केस ऑफ द डीप इंस्पिरेशन। सीधी सी बात है, जब आप डीप इंस्पिरेशन करोगे तब ये ट्रेकियल बाइफर्केशन नीचे की तरफ मूव करेगा। गेटिंग द पॉइंट? सो यस, दिस ऑल आर द डिफरेंट पॉइंट्स यू कैन रिमेंबर। Okay, so these are the different points what you can remember. Just one update for you all. Now come to this point, we are going to talk about the our lung. Okay, as well as pleura. We are going to talk about the lung and the pleura. This is important topic, so we are going to talk about the pleura first. Okay, what is the pleura? Yes, it is envelope or covering of lungs. Okay, ये लंग को कवर करने वाली स्ट्रक्चर है। नाउ सी हियर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सपोज दिस इज द राइट लंग and here is the left lung. I will tell you the lungs after this part. Okay, so these lungs are covered by the pleura. Yes, the part of the pleura which is firmly attached to the our right lung as well as the left lung, which cannot be separated easily, इसको हम बोलते हैं visceral pleura. While the layer of the pleura which is away, that is known as our parietal pleura. So there are the two types of the our pleura. What are the two types? Yes, inner is known as visceral pleura, while the outer is known as our
parietal pleura. These are the two parts of the pleura. Getting the point? Now see here that these two pleura, they are definitely the parts of the pleura. What you have to remember, visceral pleura, important point, that is supplied by autonomic nerve, visceral nerves. So these are always painless, while the parietal pleura, these are supplied by somatic nerves. That's why these are always painful. So this is very useful for you all. So remember these points. Okay. So you can remember these points. Yes. Now see here. There is a parietal pleura. Again, it is having the few parts. What are the few parts? The upper part is near the neck. So this part of the parietal pleura is known as the cervical, क्योंकि ये गले के पास है. These parts are near to the ribs. That's why these are known as our costal pleura. This inferior part is resting over the diaphragm. That's why diaphragmatic pleura. और बेटा यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा mediastinal cavity है. The space between the two lung or the pleura, that is a mediastinal surface. That's why this is known as mediastinal pleura. So what are the different parts of the pleura? See here. This is known as cervical pleura. Yes, parietal pleura के part है. This is known as our costal pleura. So easy. और बेटा ये कॉस्टल प्लूरा के बाद में आप यहां पर देख रहे हो अंदर की तरफ, यस दिस इज अवर मीडियस्टाइनल प्लूरा. और ये जो मीडियस्टाइनल प्लूरा है उसके बाद जो डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज अवर diaphragmatic pleura. Getting the point? So these are the four parts of what? Answer is parietal pleura. Getting the point? These are the four parts of the parietal pleura. Okay. Now try to understand that there are other few structures. What are the other few structures? Yes. See here. Recess of the our pleura. What is the meaning of the recess? Recess का मतलब होता है बेटा खाली जगह. खाली जगह, ब्लैंक स्पेस, दे आर नोन एज रिसेस. तो ये जो प्लूरा होते हैं पैराइटल और विसरल, वो काफी क्लोज होते हैं, बट देर आर द फ्यू पार्ट्स वेयर देर इज अ पर्टिकुलर स्पेस. कैन यू ऑब्जर्व हियर? दिस इज द स्पेस where the fluid is found in the sufficient amount. Okay, so this space is known as, what is the name of this space? This is known as our कॉस्टो, क्योंकि रिप्स के साथ रिलेटेड है. और डायफ्राम, यस यहाँ पर रिप्स होते हैं, यहाँ पर डायफ्राम होता है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कॉस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस. गेटिंग द पॉइंट? एंड इन द सेम वे यहाँ पर भी बेटा स्पेस बनता है. ये कहाँ पर है? हमारे मीडियास्टैनम और रिप्स के बाद पास में. यहाँ पर रिप्स हैं और अंदर में मीडियास्टैनम है. सो दिस रिसेस इज नोन एज कॉस्टो mediastinal recess. So this is the first and this is the second. So what I want to tell you, these are two recesses of pleura. Getting the points? These are the two recesses of the pleura. So this is general information about the pleura. So after this pleura part, now we are going to talk about our lung. Okay, so now we are going to talk about our lung part.
So here we are going to take a little break. Okay, so yes, after that we will continue. एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं बेटा. ओके, देन वी विल कंटिन्यू. बेटा अगर स्क्रीन नहीं आ रही है तो थोड़ा सा नेटवर्क को चेक करो. कोई प्रॉब्लम है तो अभी ब्रेक है, आप कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो. वी आर गोइंग टू टेक अ लिटिल ब्रेक. We are again generating the new ID. Okay, so thank you very much.